Good evening, dear students. Today we are going to discuss the Geography Chapter 6, Major Landforms of the Earth. In this chapter, we will discuss that how major landforms are formed, how they originate. In this chapter, we will discuss about the different landforms. Among these landforms, there are three main landforms. These are our mountains, plateaus, and plains. So we will discuss about the mountains, plateau, and plains in this chapter. We will discuss about the mountains, how many types of the mountains are there, how they are formed, and what are the uses of the mountains. We will also discuss about the plateaus and what are the merits, what are the advantages, or how the plateaus are useful for us. We are going to discuss. We will also discuss about the plain area, and we will discuss about the life in these different landforms, and we will discuss that how to conserve these different landforms in this chapter. Dear student, in the previous chapter, we discussed about the major domains of the earth. So in these major domains of the earth, we discuss a domain. The name of that domain is lithosphere. Lithosphere, dear student, as you are aware, lithosphere is the solid portion of the earth and it consists of the different types of the rocks and a thin layer of soil. So if we look the lithosphere or the sphere of the land from the space, we will find that it is the similar. But actual, when you see this landform, you will find the variation in the relief feature in the on the lithosphere. So these different landforms on the lithosphere are categorized into different categories. These are known as the mountains, plateaus, and plain. All are different from each other. So these landforms, जितनी भी आपकी अर्थ के ऊपर landforms हैं, they are the result of two processes. वो अर्थ की two processes की ओर से वजह से होता है. The internal process that lead to the upliftment and sinking of the earth surface, and the external process which is continuous wearing down and rebuilding of the land surface. यानी कि जो different landform that you are watching on the earth surface like mountains, plateaus और plain, ये आपके जो है एक ही दिन में नहीं बने हैं. दे ओरिजिनेट और दे फॉर्म विद द मिलियन ऑफ ईयर. और इनको जो बनने में जो प्रोसेस होती है वो दो तरह की प्रोसेस इसमें काम करती है. एक आपकी होती है इंटरनल प्रोसेस और एक आपकी होती है एक्सटर्नल प्रोसेस. जो आपकी इंटरनल प्रोसेस है, एज इट नेम इंडिकेट, द प्रोसेस और द फोर्सेस दैट डू वर्क इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर काम करती है, they are known as the internal forces of the earth. For example, volcanic eruption, earthquake. ये जो volcanic eruption और earthquake जो प्रोसेस है आपकी, ये जो दोनों प्रोसेस आपकी हैं, ये प्रोसेस जो है आपकी अर्थ के अंदर ही काम करती है. और इन प्रोसेस की वजह से दो कार्य आपके होंगे. दो तरह की लैंडफॉर्म में दो तरह के चेंजेस आपके आएंगे. फर्स्ट, लीड टू दी अपलिफ्टमेंट, कि जो आपकी अर्थ सरफेस है वो अपलिफ्ट हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी. एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, या ऐसा होगा कि जो अर्थ सरफेस है वो नीचे की ओर सिंक हो जाएगी. दो काम होंगे, अपलिफ्ट या सिंक. यानी कि या तो अपलिफ्ट होगी या सिंक हो जाएगी, यानी कि या तो ऊपर उठ जाएगी या जमीन के अंदर धंस जाएगी. आपने देखा होगा कि माउंटेन बनते हैं. माउंटेन की एक साइड में आपकी बहुत बड़ी हाइट होती है, दूसरी साइड में आपकी वैली होती है. यानी कि किस चीज को दिखाता है? इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ और इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ. यानी कि माउंटेन जैसे एक हिस्सा ऊपर उठा तो साइड वाला जो हिस्सा है वो सिंक हो गया, यानी कि वहां पे वैली बन गई. तो ये प्रोसेस आपकी होती है इंटरनल प्रोसेस. अब जैसे माउंटेन आपके बन गए हैं
ऐसा नहीं है कि जो माउंटेन बन गए हैं वो फिक्स हो जाएंगे, नहीं, उनमें भी आपका चेंजेस आएगा। वो चेंजेस किसकी वजह से आता है? एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। एक्सटर्नल फोर्सेस एज इट नेम इंडिकेट द प्रोसेस और द फोर्सेस दैट डू वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ऐसी प्रोसेस, ऐसी फोर्सेस जो अर्थ की सरफेस के ऊपर काम करती है, जैसे कि फ्लोइंग वाटर है, रिवर है, जैसे आपकी ग्लेशियर आपका बेटा, विंड है आपका, ये सारी ये सारी जो आपकी एजेंट है, ये क्या करती हैं? वियरिंग डाउन। ये जो है अलग अलग लैंडफॉर्म को वियरिंग डाउन करते हैं एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, और लैंड सरफेस को आपका रीबिल्ड करते हैं, दोबारा से उनको जो है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो आप सरफेस, जो आप जैसे कि आप प्लेन एरिया में रहते हैं, जो प्लेन एरिया आप देख रहे हैं, या प्लेट्यू का जो रीजन आप देखते हैं, या माउंटेन का जो ये रीजन देखते हैं, मिलियन ऑफ ईयर एगो दीज आर नॉट इन दी सेम शेप, वो इस शेप में नहीं थे, वो आपके चेंज हुए हैं। तो उनको चेंज किसने किया है? ब्लोइंग विंड, फ्लोइंग वाटर, ग्लेशियर्स एटसेट्रा, उनको अलग अलग फोर्सेस जो हैं वो आपकी उनको बिल्ड और रीबिल्ड का काम करती हैं, वियरिंग का काम करती है। और वियरिंग में दो प्रोसेस आपकी साइमल्टेनियसली चलती हैं, एक होता है आपका इरोजन और सेकंड आपका होता है डिपोजिशन। इरोजन, इरोजन का मतलब होता है जब हम किसी चीज का कटाव होता है, जैसे कि माउंटेन से रिवर फ्लो हो रही है, अपने साथ जो है बहुत सा जो है सेडिमेंट लेकर आती है, तो वो आपका इरोजन हो रहा है। अब वो जो अपने साथ लेकर आई है वो उसको कहीं पे जमा भी करेगी, जैसे कि डेल्टाज बनते हैं आपके, तो वो डेल्टा पे आपके डेल्टा के नाम से वो आपका जमा होता है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि आपका जो है एक अगर इरोशन एक्टिविटी हो रही है तो उसके साथ साथ डिपोजिशन एक्टिविटी भी आपकी साथ साथ होती है। नाइन्थ स्टैंडर्ड में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो लैंडफॉर्म्स हैं वो कैसे बने। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा कि जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आपकी बनी, जैसे कि हिमालयन माउंटेन आपके बन गए। अब हिमालयन माउंटेन आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, लोफ्टी माउंटेन्स आपके। तो जो लोफ्टी माउंटेन बने, एक साइड तो आपकी अर्थ की अपलिफ्ट हो गई, दूसरी साइड आपकी सिंक रह गई। तो उन माउंटेन से, यानी कि हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स ओरिजिनेट हुई, उन्होंने ये जो आपका सिंकिंग एरिया था इसको धीरे धीरे जो है ऊपर से इरोजन करके जो है नीचे उन्होंने डिपोजिशन करना शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे उन्होंने डिपोजिशन करना शुरू किया तो धीरे धीरे ये एरिया जो है ये आपका जो है उन सेडिमेंट से फिल्ड हो गया और ये एरिया आपका प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो गया। तो शिवालिक रेंज से नीचे जो हिमालय का एक पार्ट है, यानी कि जब आप चंडीगढ़ में आप जाओगे तो चंडीगढ़ में जब आप जाते हैं तो आपको जो है माउंटेन सीरीज दिखना शुरू हो जाती है, माउंटेन रेंजेस दिखना शुरू हो जाती हैं। तो वो शिवालिक है आपका, जो हिमालय का ही एक पार्ट है। तो शिवालिक से नीचे जो हमारा जो एरिया है, जैसे कि गंगा और यमुना रिवर का जो एरिया है जहाँ पे हम रहते हैं, ये प्लेन एरिया है। लेकिन ये एरिया ऐसा नहीं था, ये किसके द्वारा बनाया गया? आपके रिवर्स के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार से कोई भी जो लैंडफॉर्म्स है वो अर्थ की इंटरनल फोर्सेस की वजह से बनती है, और उनकी जो रीशेप होती है, वो जो रीबिल्ड होती है, वो आपकी अर्थ की एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होती है। तो अगर हम इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को देखें तो देर इज द इन्फिनिट लैंडफॉर्म, बहुत सी लैंडफॉर्म्स आपकी हैं, but there are mainly three landforms that we are going to discuss in this chapter. These are our mountains, plateaus and plains. So first of all we will discuss about the mountains. Mountain क्या होता है बेटा? A mountain is any natural elevation of the earth सरफेस, यानी कि जब आपका जो माउंटेन होता है ये अर्थ सरफेस की जब नेचुरल प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से आपका जो है एलिवेशन इसकी हो जाती है, इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। यानी कि आप अपने आसपास के एरिया में देखोगे प्लेन एरिया दिखाई देगा, आपके एरिया में अगर कोई ऊंची जगह है जिसकी हाइट आपकी 600 मीटर से ज्यादा है, 600 मीटर या उससे ज्यादा है, तो वो माउंटेन होता है बेटा आपका। और माउंटेन की एक खास बात ये होती है कि जो आपका माउंटेन होता है उस माउंटेन में आपका जो है
मे हैव ए स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस, उसका जो बेस होता है बेटा वो आपका जो है ब्रॉड बेस होता है, और उसका समिट जो होता है, उसकी जो चोटी होती है वो आपकी स्मॉल होती है, यानी कि उसका जो बेस होगा वो आपका ब्रॉड होगा और ऊपर से जो चोटी होगी वो छोटी होती है। सम माउंटेन्स है परमानेंट फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, जैसे ये माउंटेन आप देखोगे तो यहाँ पे आपका परमानेंट जो आपका जो है फ्रोजन रिवर ऑफ आइस है। दीज फ्रोजन रिवर ऑफ आइस आर नोन एज दी ग्लेशियर, उनको हम जो है ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। माउंटेन्स में बी अरेंज इन अ लाइन, माउंटेन जो है हो सकता है आपको एक लाइन में अरेंज दिखे, दे आर नोन एज दी रेंज, उनको हम जो है रेंज कहेंगे। रेंज क्या होती है? द सीरीज ऑफ द माउंटेन। द हिमालयास, द आल्पस एंड द एंडीज आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमारे वर्ल्ड में जो है अलग अलग जो है माउंटेन रेंजेस पाई जाती है। जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट में आपकी हिमालयन रेंजेस मिलेगी आपको, यूरोप में आपकी आल्पस और साउथ अमेरिका में आपकी एंडीज जो माउंटेन रेंजेस हैं वो आपकी पाई जाती हैं। अब बात आती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माउंटेन। So dear student, there are three types of the mountains. These are our fold mountain, block mountain and volcanic mountain. सबसे पहले हम करेंगे fold mountain. Fold mountains are formed when two continent plates move towards each other and big layers of earth crust get uplifted. थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा आपने, यहाँ पे एक बात क्या कही गई है कि फोल्ड माउंटेन यानी कि जो फोल्ड होकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक बुक है, जब मैं इसको फोल्ड करता हूं आपने देखा होगा एक हिस्सा इसका ऊपर उठ गया है। अब दो प्लेट आपकी, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट, ये दो प्लेट आपकी जो है एक दूसरे के पास आई है ऐसे। तो जब ये एक दूसरे से पास आएंगी, एक दूसरे स्ट्राइक करेंगी, तो ये आपकी ऊपर की ओर उठ जाएगी और एक हिस्सा इसका नीचे की ओर धंस जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो ऐसे आपके जो है फोल्ड माउंटेन बनते हैं। अब यहाँ पे बात कही गई है कॉन्टिनेंटल प्लेट। मैं ज्यादा तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड का आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा बेटा, बड़े ध्यान से सुननी है आपने। जिस टाइम स्टार्टिंग में आपकी अर्थ ओरिजिनेट हुई उस टाइम हमारे जो ये 7 कॉन्टिनेंट है बेटा ये एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। आज भी जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे और इन कॉन्टिनेंट को मिलाने की कोशिश करोगे तो ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे। कभी भी वर्ल्ड का मैप आप देखिएगा सारे जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो ये 7 कॉन्टिनेंट है ये एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया के नाम से जानते थे। अब जो अर्थ होती है बेटा, अर्थ की 3 लेयर होती हैं जो हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। एक होती है बेटा आपकी क्रस्ट, सेकंड होती है आपकी मेंटल और थर्ड आपकी होती है कोर। जो कोर होता है बेटा, कोर जो है मोल्टन मैग्मा वहां पे होता है, यानी कि वहां पे लावा होता है, मोल्टन मैग्मा होता है। और अर्थ का जो कोर है उसका जो टेम्परेचर है दैट इज 6000 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब आपने देखा होगा बेटा वाटर बॉईल कितने डिग्री पे होता है आपका? 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका बॉईल हो जाता है। तो अगर किसी जगह का तापमान आपका, टेम्परेचर आपका 6000 डिग्री सेल्सियस होगा तो टेम्परेचर कैसा होगा बेटा? बहुत ज्यादा होगा, यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग वहां पे चला जाए वहां तक जा ही नहीं पाएगा, पहले ही मेल्ट हो जाएगा वो। तो आपकी अर्थ अंदर से इतनी गर्म है कि वो मोल्टन स्टेज में और लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से क्या होता है उसमें से एनर्जी राइज आपकी होती है। एनर्जी ऐसे वेव्स के रूप में चलती है। कई बार ये वेव जो है अर्थ क्रस्ट के बहुत पास आ जाती हैं, जिसके आप ऊपर आप रहते हो, तो उसकी वजह से क्या हुआ अर्थ क्रस्ट जो है वो टीयर हो गई, टूट गई इनटू लार्ज फ्रेगमेंट, बड़े बड़े टुकड़ों में। उन लार्ज फ्रेगमेंट को हम जो है टेक्टोनिक प्लेट, लिथोस्फेरिक प्लेट या कॉन्टिनेंटल प्लेट के नाम से जानते हैं। और आपकी जो है 7 मेजर आपकी जो है प्लेट्स हैं बेटा, ठीक है। और हम जिस प्लेट के ऊपर रहते हैं
उस प्लेट का नाम है बेटा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। उस प्लेट का नाम जो है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और जो सबसे बड़ी प्लेट है अर्थ की आपकी, वो है आपकी बेटा यूरेशियन प्लेट। ठीक है, इतना ही मैं आपको बता पाऊंगा। तो ये प्लेट क्या होती है, जब कोई भी चीज होती है बेटा, नीचे कोई लिक्विड चीज होती है, उसके ऊपर सॉलिड चीज होती है, तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी या सिंक हो जाएगी। तो जो ये टेक्टोनिक प्लेट जो है, ये जो है उस मोल्टन मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। तो कई बार जब ज्यादा मूवमेंट आपकी होती है, लावा के अंदर वेव ज्यादा निकलता है, तो आपको जो है धरती कांपती हुई नजर आती है, महसूस करते हैं कि धरती हिल रही है, जिसको आप अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। तो अर्थक्वेक आपका तभी आता है जब टेक्टोनिक प्लेट या कॉन्टिनेंट प्लेट्स में आपकी मूवमेंट होती है, तो उसकी वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। और कई बार जब ये लावा अर्थ क्रस्ट के बिल्कुल पास आ जाता है, तो क्या होता है कि आपका लावा जो है अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल जाता है, जिसको हम वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। आपका जो पैसिफिक ओशन है बेटा, पैसिफिक ओशन के अंदर एक जगह ऐसी है आपकी जहां पे 24 आवर्स आपका वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है और वहां से मोल्टन मैग्मा आपका निकलता रहता है। उस जगह को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। आप YouTube पे देखेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो आपको वीडियो बड़ी आराम से मिल जाएगी बेटा। तो मोल्टन मैग्मा की वजह से कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में आपकी जो मूवमेंट होती है, वो तीन तरह की मूवमेंट आपकी होती है बेटा। एक मूवमेंट क्या होती है कि दो प्लेट जो हैं एक दूसरे के पास आ रही हैं, जब एक दूसरे के पास आएंगी, एक दूसरे स्ट्राइक होंगी, तो आपकी जो है जो अर्थ सरफेस है वो ऊपर की ओर उठ जाएगी और एक हिस्सा उसका नीचे की ओर सिंक हो जाएगा। ऐसे तो बनते हैं आपके फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो अभी हम इतना ही बताएंगे इसमें। तो ऐसे आपके जो है फोल्ड माउंटेन बनते हैं जब दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स आपकी एक दूसरे के पास आ जाती हैं। द हिमालयाज एंड द आल्पस आर यंग फोल्ड माउंटेन। इस प्रोसेस से जो माउंटेन बने हैं बेटा, वो हैं आपके हिमालय और आल्पस। हिमालय और आल्पस जो हैं ये यंग माउंटेन है, यानी कि जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो मिलियन ऑफ ईयर पहले बन चुके हैं आपके, लेकिन जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके यंग माउंटेन है। और नेचर में कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन, आपको लेयर मिलेंगी बेटा इसमें। इसके अतिरिक्त जो अरावली रेंज इन इंडिया है, दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। अरावली जो है वो भी हमारा इंडिया में है बेटा, और ये आपका जो है सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन आपका वर्ल्ड में माना जाता है। इसके अतिरिक्त सेकंड आपका टाइप है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है बेटा आपका, आर फॉर्म व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन। जब बहुत बड़ा एरिया आपका ब्रोक हो जाता है एंड डिस्प्ले और अपनी जगह से खिसक जाता है वर्टिकली, लंबवत रूप से, यानी कि वर्टिकली ऐसे सीधा अपनी जगह से खिसक गया, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। आप अपनी बुक में जो है इसकी पिक्चर भी देखेंगे। तो द अपलिफ्ट ब्लॉक आर कॉल्ड हॉर्स। तो जो अपलिफ्ट ब्लॉक आपके होते हैं उसको हम हॉर्स के नाम से जानते हैं। जैसे ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या है, वर्टिकली आपका जो है बड़ा हिस्सा जो है आपका टूट चुका है। तो जो अपलिफ्ट आपका पोर्शन होता है दिस वन, इस पोर्शन को हम बोलते हैं होर्स्ट। और जो आपका लोअर पार्ट होता है, ये हिस्सा जो नीचे की ओर धस गया है, इसको हम बोलते हैं ग्रैबन। ये ब्लॉक माउंटेन में आपका आता है। अपलिफ्ट पोर्शन इज नोन एज द हॉर्स एंड द लोअर पोर्शन इज नोन एज द ग्रैबन। द राइन वैली एंड द वोसिस माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। जो राइन वैली है और जो वोसिस माउंटेन है, ये जो यूरोप में आपके हैं, ये ब्लॉक माउंटेन का ही आपका एक पार्ट है। और तीसरा जो आपका जो है माउंटेन का टाइप होता है, दैट इज दी वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक जो माउंटेन्स होते हैं, दे आर फॉर्म ड्यू टू दी वोल्केनिक एक्टिविटी। ये वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आपके जो हैं बनते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आपके बनते हैं। माउंट फ्यूजियामा इन जापान एंड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका आर द एग्जांपल ऑफ
वोल्केनिक माउंटेन, ये वोल्केनिक माउंटेन का आपका एक टाइप है। तो माउंटेन बेटा तीन तरह के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। सेकंड जो आपकी इसके अतिरिक्त जो माउंटेन्स होते हैं, दे आर वेरी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, वो आपकी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे कि माउंटेन आर वेरी यूजफुल एज मैनी रिवर हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन, क्योंकि जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स में आपके ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर क्या होती है? फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, जहां से आपकी डिफरेंट रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, डिफरेंट रिवर्स ओरिजिनेट आपकी होती हैं। तो उसकी वजह से आपका क्या होता है बेटा कि डिफरेंट रिवर ओरिजिनेट होंगी, तो आपका जो है बहुत से एरिया को ये आपकी ड्रेन करती हैं और लोगों की जो है वाटर अमाउंट को कंप्लीट करती हैं। सेकंड, वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज यूज फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर आपका माउंटेन से आपका आता है, उसको लोग जो है खेतों में फसलों में पानी देने के लिए प्रयोग में लाते हैं, और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करते हैं। माउंटेन हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब माउंटेन जो होते हैं उनमें बहुत से फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब बहुत से जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो उसमें फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, यानी कि अलग अलग स्पीसीज ऑफ प्लांट पाई जाती है, एंड फोना वाइल्ड लाइफ, और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्यूल। इसके अतिरिक्त जो फॉरेस्ट होते हैं उससे हमको फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट, बहुत से प्रोडक्ट भी मिलते हैं। यानी कि फ्यूल जैसे कि लकड़ियां मिलती हैं बेटा, फोडर पशुओं के लिए जो है ग्रास मिलता है, फोडर मिलता है। शेल्टर, बहुत से लोग जो हैं जंगलों में रहते हैं, जैसे कि आदिवासी लोग जो हैं, ट्राइबल जो लोग हैं। एंड अदर प्रोडक्ट जैसे कि रेसिन्स आपका, गम्स है आपका, या आयुर्वेदिक जो मेडिसिन आपकी होती हैं, वो सारी की सारी आपकी जो है कहाँ से मिलती हैं बेटा? हमको माउंटेन से ही मिलती हैं। Mountains are ideal for tourists and are famous for sports like paragliding, hand gliding and river rafting and skiing। और बहुत से एडवेंचरस जो आपके गेम्स होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है बेटा आपका, हैंड ग्लाइडिंग आपका, रिवर राफ्टिंग है आपका, और स्कीइंग है आपका। जो ये आपके जो है एडवेंचरस गेम जो है वो माउंटेन में ही पॉसिबल आपके होते हैं। इसके बाद आपका आता है बेटा प्लेट्यू। A plateau is a flat top table land standing above the surrounding area। वैसे तो जो आपका प्लेट्यू होता है बेटा, ये भी आपका नेचुरल एलिवेशन होता है, लेकिन माउंटेन से ये कैसे अलग होता है? माउंटेन जो होता है वो आपका जो स्टीप, उसमें उसकी जो है आपकी हिल होती है, स्टीप आपका जो है, आपका जो उसका सबमिट होगा वो स्मॉल सबमिट होगा। लेकिन जो प्लेट्यू का जो सबमिट होगा वो फ्लैट टॉप टेबल लैंड, जैसे कि हमारे घरों में टेबल होती है जो ऊपर से फ्लैट होती है, ऐसे होगा। जैसे ये पिक्चर में आप देखेंगे ये ऊपर से आपका फ्लैट है, तो इस प्रकार की जो शेप मिलेगी, टेबल लैंड मिलेगी आपको, वो आपकी प्लेट्यू होती है। द हाइट ऑफ द प्लेट्यूज वेरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर। और इनकी जो हाइट होती है, एलिवेशन जो इनका होता है, ये कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर तक आपका हो सकता है। जैसे कि इंडिया में एक बहुत फेमस आपका प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना जो प्लेट्यू है वो इंडिया में है, दैट इज द दक्कन प्लेट्यू। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू। और नेपाल के अंदर जो तिब्बत प्लेट्यू आपका है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू आपका माना जाता है। यानी कि ये जो आपका जो है सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू आपका जो है तिब्बत प्लेट्यू है। और तिब्बत जो आपका प्लेट्यू है, इसकी हाइट जो है वो 4000 टू 6000 मीटर जो है अलग अलग आपकी जो है वेरी करती है। यानी कि ये 4000 से लेकर 6000 मीटर तक आपका ऊंचा है। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल। जैसे माउंटेन इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ऐसे ही प्लेट्यू भी आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि दे आर दी रिच इन दी मिनरल्स, क्योंकि उनमें अलग अलग मिनरल जो है वो आपके पाए जाते हैं। ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? जैसे कि आयरन, कोल, मैंगनीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ऐसे ही आपका अफ्रीकन प्लेट्यू है आपका, इज फेमस फॉर
गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, जैसे अफ्रीका में आपका जो है, जो आपका प्लेट्यू है, वहां पे आपका जो है गोल्ड और डायमंड जो है वो आपके वहां पे पाए जाते हैं। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सोइल, हमारा जो यहाँ पे जो प्लेट्यू है इंडिया में, जो लावा प्लेट्यू है, वहां पे जो मालवा प्लेट्यू आपका है, ये जो प्लेट्यू है ये रिच ब्लैक सोइल इसमें पाई जाती है, जहाँ पे कॉटन आपकी बहुत ज्यादा आपकी ग्रो होती है, विच इज फर्टाइल, जो बहुत फर्टाइल होती है, एंड गुड फॉर कल्टीवेशन, और खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। देयर आर मैनी वाटरफॉल इन द प्लेट्यूज, प्लेट्यूज में आपके वाटरफॉल भी पाए जाते हैं। फ्रॉम ए ग्रेटर हाइट, जो बहुत ऊंची हाइट से आपके गिरते हैं, जैसे कि हुंड्रू फॉल्स ऑफ छोटा नागपुर एंड जोग फॉल ऑफ कर्नाटका। दो फॉल इंडिया में आपके पाए जाते हैं, हुंड्रू फॉल और जोग फॉल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच वाटरफॉल। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द प्लेट्यूज। नेक्स्ट आपका आता है प्लेन। प्लेन एरिया क्या होता है बेटा? लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड, ये फ्लैट लैंड होती है, हम जहां पे रहते हैं ये आपका प्लेन एरिया है। जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबोव मीन सी लेवल, ये सी लेवल से आपका 200 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं होता है, ये तकरीबन आपकी जो फ्लैट लैंड होती है। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर, ज्यादातर जो आपके प्लेन एरिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये रिवर्स के द्वारा आपके फॉर्म्ड होते हैं, रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि रिवर माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, अपने साथ सेडिमेंट लेकर आती है, एक स्थान पर जमा करती चली जाती है, इससे जो है आपके प्लेन एरिया बनते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में हम रहते हैं, जो आपका इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा फॉर्म्ड किया गया है। एंड देयर ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी होता है बेटा जब किसी बड़ी नदी में छोटी नदी मिलती है, तो उस छोटी नदी को हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, सबॉर्डिनेट रिवर बोलते हैं, हेल्पिंग रिवर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि गंगा रिवर है बेटा, बहुत बड़ी नदी है, गंगा रिवर में यमुना रिवर मिलती है, तो यमुना जो है इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। द रिवर फ्लो डाउन द माउंटेन कैरिंग फॉरवर्ड इरोडेड मटेरियल, जो रिवर आपकी माउंटेन से नीचे की ओर आती हैं, वो अपने साथ बहुत सा इरोडेड मटेरियल लेकर आती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, जिसमें स्टोन भी होते हैं, सैंड भी होता है और सिल्ट भी होता है, सिल्ट यानी कि कीचड़ भी होता है। दिस इज डिपोजिटेड अलोंग देयर कोर्सेज, ये अपने कोर्सेज के साथ इसको जमा करती रहती है। अब यहाँ पे कोर्सेज का मतलब जो है बेटा कोई कोर्स नहीं है, जो आपकी रिवर होती है उसके 3 कोर्स होते हैं बेटा, रिवर हैज दी 3 कोर्सेज। जब माउंटेन से ओरिजिनेट होती है तो उसको हम बोलते हैं अपर कोर्स, और जब माउंटेन में वो आपकी फ्लो करती है तो वो अपर कोर्स होगा। जब माउंटेन से प्लेन एरिया में एंटर करती है तो वो मिडल कोर्स होता है, और जब आपकी समुद्र में गिरती है तो वो आपका लोअर कोर्स होता है। माउंटेन में जब आपकी रिवर फ्लो करेगी तो वहां पे उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है सबसे ज्यादा होगी। प्लेन एरिया में मीडियोकर होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, और जब समुद्र में गिरेगी तो बिल्कुल धीमी हो जाएगी। तो तो अलग अलग कोर्सेज में जो है ये आपकी जो है जमा करती रहती है, यानी कि मिडल कोर्स में भी जमा करती है, और जब लोअर कोर्सेज में होती है तो डेल्टा को फॉर्म करती है। इन देयर वैलीज फॉर्मिंग द प्लेन, तो इस प्रकार से ये जो है जो वैलीज को फिल करती जाती है और वहां पे प्लेन एरिया जो है आपके बनते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेन फॉर्म्ड बाय दी गंगा, यानी कि गंगा के द्वारा जो आपका प्लेन एरिया बनाया गया है जहां पे हम रहते हैं, एंड दी ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, जिसको आप नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, एंड यंगजे इन चाइना, और चाइना में जो यंगजे प्लेन है वो जो है आपके रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं। द प्लेन आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन, सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो प्लेन एरिया में रहते हैं, एज दे आर फर्टाइल, क्योंकि ये उपजाऊ होते हैं, फर्टाइल होते हैं, एंड लैंड इज अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जाती है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर की जा सकती है, मकान आराम से बनाए जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए जो प्लेन एरिया होता है इसमें सबसे ज्यादा आपकी पॉपुलेशन होती है। द इंडो गैंगेटिक प्लेन आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ इंडिया, और जो हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है ये आपका सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन है। अब लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, अलग अलग लैंडफॉर्म में कैसे लोग रहते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स, लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरिया, सबसे ज्यादा हार्श जो क्लाइमेट होती है वो माउंटेन एरिया की होती है।
प्लेट्यूज में भी हार्श चीजें होती हैं। एंड प्लेन प्रोवाइड मच बेटर लिविंग कंडीशन, और सबसे आरामदायक जो जीवन होता है, कंफर्टेबल जो लाइफ होती है, वो आपकी जो है प्लेन एरिया में होती है। समटाइम वी यूज लैंड एंड वाटर इन अ केयरलेस मैनर। कई बार हम अपनी लैंड को और वाटर को केयरलेस मैनर में यूज करते हैं, एंड वेस्टफुल मैनर, और वेस्ट करते रहते हैं, बाय थ्रोइंग गार्बेज इन वाटर, जैसे पानी में कचरा डालकर, एंड बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड, या फर्टाइल लैंड पर मकान बनाकर। तो हम उसको अच्छी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। हमको जो है ये लिमिटेड सोर्स है बेटा, इनको हमको जो अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। वी शुड अवॉइड मिसयूजिंग दिस गिफ्ट ऑफ नेचर। तो लैंड एंड वाटर का जो मिसयूज है उसको हमको खत्म करना चाहिए। इट इज अवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जैसे हमारे पूर्वजों ने हमको एक अच्छी जगह रहने के लिए दी है, हम भी अपने आने वाली पीढ़ियों को जो है एक अच्छी जगह जो है रहने के लिए देकर जाएं। So dear student, this is our chapter. In this chapter, we discuss about the different types of the landforms, how they are formed. We discuss about the mountains, plateaus, plain area, and the life in the different landforms.